اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، اب یہاں جو سورہ انفطار ہے جو کہ جوڑے کی شکل میں ہے، یہاں آپ لوگ یہ نوٹس کریں کہ جو لکھنے والا پوائنٹ ہے کہ سورہ تکویر میں وہ 1 سے 13 رہا نا، 1 سے 13 آیات جو تھی وہ آخرت کے کیفیت کا ذکر تھا۔ سورہ انفطار میں 1 سے 4 رہیں گی، جو وہ 13 آیات میں تھی وہ سمٹ کے ان میں 1 سے 4 میں آ جائے گا۔ سورہ انفطار کی جو 1 سے 4 آیات ہے وہ اسی طرح ہی چلیں گی جو قیامت کے جو حالات اور نقشے کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، اور وہ والی بات یاد رکھیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ تکویر میں کیا کہا تھا کہ فَإِنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، تم حق کو پہچانو، تم کدھر جا رہے ہو۔ یعنی وہ اس سورت کا بہت اس طرح کی بات ہے کہ واقعی فَإِنَ تَذْهَبُونَ کہ ایک اصلاح کا معاملہ ہے، لیکن تم سیرت کو نہیں پہچان رہے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، تم حق کو نہیں پہچاننا گوارا کر رہے، بلکہ تم وہی دور جاہلیت میں، یعنی اتنی پستی کے باوجود بھی تم اصلاح نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ جو ہے وہ اس میں معاملہ تھا تکویر میں۔ چلیں اب سورہ انفطار شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح جو ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 6 میں، کہ سورہ تکویر آیت 6 میں، کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب سورہ انفطار میں کیا آیا کہ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں اب ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو زمین کی شکل کھینچی جائے گی اس میں، تو یہ اندر کا جو لاوا باہر نکالے گی، تو اس سے وہ پھٹیں گے بھی، پھاڑ دیے جائیں گے، اور وہ دہکیں گے، یعنی وہ اتنے گرم ہوں گے کہ کیسے، اب ممکن ہے اس میں 2 کنڈیشن یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ آبی بخارات کی طرح اڑ جائے گا سارے کا سارا سمندر کا پانی، واللہ عالم، کہ وہ بھڑکا دیے جائیں گے اور وہ گرماہٹ اتنی ہوگی کہ وہ پھٹیں گے بھی اور بھڑکا بھی دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 5 کی طرف، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ٹھیک ہے نا۔ اتنی اہم آیت کہ اس ایک پہ بھی آپ غور کریں نا، کہ تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی ہم بہت دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آگے کیا بھیجا ہے، آگے دیکھیں وہ اعمال جو اس وقت مسلسل ہم دنیا میں کرتے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ ہم آٹومیٹک، یعنی کہ وہ جو ایک معاملہ ہے دنیا کا قاعدہ قانون کے مطابق، وہ اعمال ریکارڈڈ ہے، وہ ہر عمل، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز ریکارڈڈ ہے، اور وہ مسلسل ہر جو ہمارا سیکنڈ ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ایک سیکنڈ ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے آگے بھیج دیا۔ اچھا، پیچھے چھوڑنے میں مفہوم کیا آتا ہے؟ ایک تو پیچھے چھوڑنے کا مفہوم یہی ہے کہ پیچھے بھی یا تو کوئی ایسی گناہ چھوڑ دیا وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی حساب کتاب ہمیں آ رہا ہے، نیکی کر دی وہ بھی آ رہی ہے، ایک مفہوم تو یہ والا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دوسرا مفہوم اس کا ہے کہ وہ اعمال جو کرنے چاہیے تھے یہاں پہ، وہ دنیا میں چھوڑ آیا، یعنی اعمال تو سارے ہیں یہاں پہ، یہی تو وہ ایک اختیار ہے کہ جو ہم کر نہیں پا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اعمال تو اچھے اعمال سارے موجود ہے، کرو تو صحیح، ٹھیک ہے نا، سب کچھ موجود ہے، تو پیچھے وہ چھوڑا جو کر کے آنا چاہیے تھا، اور آگے وہ بھیجا جو اپنے عمل سے خود کیا، اور سارے مواقع یہاں موجود ہیں، اور جیسے قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، تو کیسے آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اپنے ذمے ہیں، وہ سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیات اسی طرح ہیں کہ یہاں سارے مواقع موجود ہیں، تو اس وقت جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا یعنی تمام اعمال تم کر سکتے تھے، نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا اس کا وہی کہ اللہ نہ کرے ہم کوئی پیچھے بھی برے چھوڑ دیں تو وہ بھی ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی شخص کرتا رہے، اور اسی طرح نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی چھوڑ کے جائیں گے تو وہ بھی تب تک چلتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے دونوں مفہوم، اور دونوں مفہوم کا جو خلاصہ ہے وہ ایک ہی بات ہے، طرز عمل، یعنی ہمارے اعمال، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 6 دیکھیں،
या अय्युहल इंसानो, ए इंसान, मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला है, बिरब्बिकल करीम, तेरे रब की बाबत। ठीक है ना। आयत नंबर 6 इतनी अहम, मेरा ख्याल से हम सब कॉन्टिनेंट वालों के लिए तो बहुत अहम है, बाकियों का तो खैर नहीं चले। इंसान ये जो हम लोग है ना, ये हम पे फिट आती है। देखें इसका क्या मतलब है कि ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, अपने रब करीम के बारे में। ठीक है ना। ये वही वाली बात कि सारे मामला छोड़ो, बस नवाफिल व नवाफिल पढ़ते रहो, खुद ही सब हो जाएगा। ठीक है ना। गुनाह भी नहीं छोड़ो और कहते रहो कि अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो और डाल क्या करो, डालो वही ये शैतानी वसवसे हैं। ये है अल्लाह के नाम पे धोखा देना। ये शैतान क्या करता है, शैतान यही काम करता है। ठीक है ना। हमें यही उम्मीदें दिलाता है और हम खास करके आज अमल इस वजह से नहीं करते कि हम इस धोखे में रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो जो मर्जी कर लेंगे ना, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है जी, सब कुछ हो जाएगा, कोई गुनाह, सब सब धुल जाएंगे, सब माफियां हो जाएंगी। ये है सबसे बड़ा धोखा कि अल्लाह ताला ने कहा इसको, बल्कि आप लोग वो लिखें सूरह लुकमान 33। हाँ लिखें आप सूरह लुकमान 33, मैं आपको उसका तर्जुमा बताती हूँ। सूरह लुकमान 33 में क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो बड़ा धोखेबाज है। ठीक है ना। वो बहुत धोखेबाज है तुम लोगों को अल्लाह के बारे में, कि कहीं धोखे में ना मुब्तला कर दे। ठीक है ना। यानी ये शैतान हमें किस किस तरह धोखे में डालता है, ये इसी तरह ही है कि सिर्फ अस्कार में लग जाओ, अच्छा नवाफिल में लग जाओ, अच्छा सारे गुनाह के काम करते रहो, सदकात में लग जाओ, गुनाह नहीं छोड़ने, लेकिन अपने आप को खुद कंपनसेट कर रहे होते हैं हम लोग कि ठीक है एक तरफ ये कर लिया तो साथ ही ये भी कर लो। ठीक है ना। प्लस माइनस अपना खुद रखा हुआ हिसाब किताब। जबकि देखें सहाबा की जब हम सीरत पढ़ते हैं, वो सारे नुकात, पूरे दीन के तमाम पॉइंट, सब चीजें लेके चलते थे। हम उसको चूज करके, और फिर धोखा क्या होता है, ये वाला होता है कि जी अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, सब 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 गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि देखो कि ये कहीं जो शैतान है ना, ये बहुत यानी लईन है, तो ये शैतान लईन कहीं तुम लोगों को अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। राइट। ये सूरह लुकमान 33 में भी ये आया है। और उसका सबसे बड़ा यही होता है कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, बहुत गफूर है, बहुत करीम है। ठीक है ना। कि वो तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ कर देगा। और इस वजह से जो मेन होता है ना, कि जिसकी वजह से हमारी बेअमली हो जाती है, कि हम वो छोटे छोटे जो हमने लगा के रखे हैं ना, हम उन्हीं में ही घूमते रहते हैं कि हाँ भाई अपने दिल की तसल्ली के लिए चलो सदका दे दो, ये कर दो, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ने, वो नहीं करना, वो भी चलता रहे, और साथ साथ चलो दिल की तसल्ली के लिए ये करते रहो। ठीक है ना। लेकिन देखें कुरान का ये अंदाज नहीं है। कुरान कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ठीक है ना। हमें हमें देखे तकरीबन सब पढ़े हैं कि काफिर कौन होते हैं, देखिए मुनाफिकीन कौन होते हैं, देखिए मक्का के कुफार कैसे थे। ठीक है ना। अपने दीन की खातिर उन्होंने जंगें कर ली। मुनाफिकीन ना इधर के ना उधर के, यहूदी उलमा, यानी हम देखें तो ये सारे हमने किरदार पढ़े हैं। तो ये इस तरह से है कि ये भी फिर इस तरह से समझाया गया है इसी इसमें कि देखो इन धोखों में ना रहना, यानी हर किरदार को देखो और उससे सबक हासिल करो। ठीक है ना। कि कहीं ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, अपने रबे करीम के बारे में, जो कि सूरह लुकमान 33 से हमें क्लियर हो जाता है कि ठीक है। आयत नंबर 7 देखें, अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़ा का, पैदा किया तुझे, फसव्वा का, फ़अदल, फिर ठीक ठीक किया तुझे, फिर मोतदिल बनाया तुझे। ठीक है ना। एतदाल, मोतदिल बनाया। आयत नंबर 7 में देखें, तख्लीक की, फिर तुम्हारी देखें वो जो फिनिशिंग, नोक पलक संवारे, फिर तुम्हारा एतदाल किया, तो भाई तुम्हें एतदाल से पैदा किया। अब आप देखिए ना, ये जब आयत हम पढ़ते हैं, आयत नंबर 7, और हम जो अपने आप को देखते हैं, अब क्या है हमारी अपनी अपनी तकलीफ, आप खुद देखें, देखें कितनी बैलेंस्ड आंखें, नाक, कान, जिस्म, खूबसूरती है ना, ये पूरी खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस तरह बनाया है, तो इतना जिस तरह खूबसूरत बनाया है ना, और ये तमाम चीजें मुसख्खर कर दी, ताबे कर दी इस इंसान के, तो इसके साथ साथ फिर अदलो इंसाफ भी रखा कि ठीक है जब इतना कुछ दिया गया, इन नेमतों का फिर आखिरत पे हिसाब होगा लाजमी। ठीक है तुम्हें इतना नवाजा था, इतनी नेमतें इस दुनिया में दी थी, लेकिन तुम मालिक बन बैठे। हमें कुरान से ये पता चलता है ना कि जिसको जरा सा दो तो वो मालिक बन बैठता है। तो ठीक है, फिर अदलो इंसाफ का तकाजा भी फिर यही है कि आखिरत में ये पूरे गुनाहगार को फिर उसकी सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस बेस पे कि जब अल्लाह ताला ने हर चीज में इत्तेदाल रखा, यानी अपने लिहाज से तो हम कहें कि हम सबसे परफेक्ट हो, फिर आगे नहीं देखना, यानी हमें यहाँ भेजने के बाद एक तरीके से रहना है, और जो तरीके से नहीं रहेगा, नाफरमानी करेगा, तो ठीक है वो उसकी सजा पाएगा फिर। ठीक है। और वो नेकियां करेगा तो उसका भी अजर पाएगा। आयत नंबर 8 देखें, फी अय्यि सूरतिन,
जिस सूरत में शाअ रक्कबक, इसने चाहा जोड़ दिया तुझे। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है। देखें, हमसे तब हमारी मर्जी तो ना शक्ल बनाने में, ना हमारे यहाँ आने में, कुछ भी नहीं। ये पूरी अल्लाह ताला की प्लानिंग है, जिसके मुताबिक जिस सूरत में इसने चाहा तुम्हें जोड़ दिया। ठीक है ना, तमाम हमारे आज़ा, हमारे रंग, हमारी चीजें, देखिए कैसे बिल्कुल इसमें हमारी तो कोई मर्जी नहीं। अल्लाह ने हर इंसान की शक्ल और हर इंसान का आज़ा अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक है ना, जिस सूरत में इसने चाहा जोड़ दिया तुझे। कल्ला, हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबून, बल्कि तुम झुटलाते हो, बिद्दीन, क्यामत के दिन को। हाँ, आयत नंबर 9। अच्छा, आयत नंबर 9 में है ना कि हरगिज नहीं, बल्कि असल में तो तुम जजा और सजा का इनकार कर रहे हो। ठीक है ना, ये सब कुछ देखने के बाद, यानी अपने आप को इंसान गौर करे और इस कायनात की निशानियों को भी करे, फिर भी तुम जब गलत करते हो तो इट मीन तुम आखिरत के दिन को फिर तुम झुटलाते हो। ठीक है ना, अपने अमाल से तुम झुटलाते हो फिर। अच्छा, अब आती है आयत नंबर 10, 10, 11, 12, इनको मैं इकट्ठा ही कर लें, 10, 11, 12 को। ठीक है ना, 9 के बाद 10, 11, 12। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, जबकि बिलाशुबा तुम पर अलबत्ता निगरान है। किरामन कातिबिन, जो कि मुअज्जिज हैं और लिखने वाले हैं। यालमूना मा तफअलून, और वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। ठीक है ना, कितना ग्रेजुअली आया ये। जब आयत नंबर 6 शुरू होती है तो देखें, ए इंसान से सारी बात हो रही है कि ये इंसान देखे तो सही, इसको पैदा किया, इसको ठीक किया, इसको एतदाल से बनाया, इसकी सूरत बनाई, इसकी हर आज़ा जोड़े। उसके बाद, उसके बावजूद ये क्या करता है, आखिरत के दिन को झुठलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद, क्योंकि इतना हम वो है फजीलत वाली मखलूक, राइट ना, अकॉर्डिंग टू सूरह बनी इसराइल की जो आयत है, हम लोग फजीलत वाली मखलूक है, यानी मखलूक तो बहुत है लेकिन फजीलत हमें दी गई। तो ये जब तुम्हें बनाया गया तो क्या तुम ऐसे ही समझ रहे हो कि हमने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम घूमो, यानी कि इस दुनिया में आके भूल जाओ? नहीं, बल्कि हमने तुम में से एक एक इंसान के साथ क्या है, एक निगरान लगे हुए हैं। ठीक है, तुम पर अलबत्ता निगरान है जो कि मुअज्जिज है। ये याद रखिए, रखा करें इस आयत को पढ़ते हुए कि ये जो हमारे, ये जो लिखने वाले फरिश्ते हैं कौन है, किरामन कातिबीन है, इनको मुअज्जिज कहा गया है, मुअज्जिज लिखने वाले हैं। यालमूना मा तफअलून, और वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अच्छा, अब यहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए आप लोग लिखें सूरह काफ से 17 से 18 आयत। सूरह काफ, सूरह काफ में इन्हीं का जिक्र है कि सूरह काफ की जो आयत नंबर 17 और 18 है कि यही दो होंगे, फिर जो होगा एक निगरान फरिश्ता होगा और एक जो है जिसके हाथ में हमारा अमाल नामा होगा। अभी तो ये दो है ना, दो के बाद ये जो हम 17, 18 पढ़ते हैं, जिसमें एक बाएं तरफ है, एक सॉरी एक दाएं पहलू पे है, एक बाएं पहलू पे है, जो कि बैठे हुए हैं दोनों। इनका जिक्र हमने सूरह काफ 17, 18 में भी पढ़ा है। उसके बाद है कि इंसान नहीं बोलता कोई लफ्ज मगर एक निगरान फरिश्ता है जो कि उसने पूरा अमालनामा तैयार कर रखा है। ठीक है ना, जिसमें इसने ये आगे जाके फिर आ जाता है, ये सूरह काफ की आप आयत पढ़े ना, यह 17, 18 के बाद भी, कि एक है जिसने उस दिन पकड़ा हुआ होगा हमें, और एक होगा जिसने अमाल नामा उठाया होगा। ठीक है, सूरह काफ के अंदर इस तरह से जिक्र आता है। और सूरह कहफ, जुम्मे वाली जो सूरह कहफ है, एक तो सूरह काफ है ना जिसका 17, 18 आप लोगों ने लिखा है, एक सूरह कहफ है जो हम हर जुम्मे पढ़ते हैं। उसमें से 49 आयत से जब आप लोग गुजरे तो उसको ना 2 दफा पढ़ लिया करें, कि 49 आयत है ही यही कि जब रख दिए जाएंगे अमाल नामे, फिर आप देखेंगे मुजरिमों को कि वो क्या कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा अमाल नामा है, इसने ना कोई छोटे से छोटा अमल छोड़ा, ना कोई बड़े से बड़ा अमल छोड़ा। ठीक है ना, ये कैसा अमाल नामा है जो आज हाजिर कर दिया गया है। ठीक है ना, सूरह कहफ 49 और सूरह काफ 17, 18। और उसके बाद हम अब सूरह इन्फितार पढ़ रहे हैं, तो इसमें उनको किरामन कातिबीन कहा गया है कि तुम जो अमल कर रहे हो ना, ये सब रिकॉर्डेड है। 13, इन्नल अबरार लफी नाइम, बिलाशुबा जो नेक लोग होंगे अलबत्ता नेमत जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बिलाशुबा जो बदकार लोग होंगे अलबत्ता जहन्नुम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो दाखिल होंगे इसमें यौम जजा को। ठीक है ना, ये वाली बात के दाखिल तो उस दिन ही होना है, अभी तो बस अमाल करते जाएं। इन मोमिन ये कभी ना सोचा कि हाँ जी मैंने मेहनत की तो मुझे उसका सिला मिले। सिला जो है वो अल्लाह ने आखिरत पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, और उस आखिरत में और इस दुनिया में जो मेन है फिर जो इम्तिहान आता है वो कब्र है, यानी उसमें मौत रख दी गई कि मौत में ही जाते ही जैसे कब्र में इम्तिहान तो वहीं से शुरू होगा कि ये जो तैयारी करके आया उसके पहले 3 सवाल के जवाब तो कब्र में ही दो ना। ठीक है ना, और नेमतें कब मिलेंगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, आखिरत में। तो अलबत्ता नेक लोग जन्नत में होंगे और बिलाशुबा बदकार अलबत्ता जहन्नुम में होंगे। ठीक है ना, आयत नंबर 13, 14 ये रिजल्ट्स। ठीक है ना, आयत नंबर 15 देखें,
यस्लौनहा यौमद्दीन, वो दाखिल होंगे इस दिन यौम जजा को। 16 वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और ना वो उससे गायब होंगे। ठीक है ना, 16 का मतलब उससे वो कहीं गायब नहीं हो सकेंगे उस दिन, ना कोई कहीं भागने का रास्ता होगा और ना कहीं भागने की ताकत ही होगी। ठीक है ना रास्ता होगा ना ताकत ही होगी उस दिन भागने की। आयत नंबर 17 वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और किस चीज ने खबर दी आपको कि क्या है यौमुद्दीन। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर किस चीज ने खबर दी आपको कि क्या है यौमुद्दीन। 19 देखें, यौम, जिस दिन, ला तमलिकू, नहीं इख्तियार रखेगा, नफ्सुन, कोई शख्स, लिन नफ्सिन शैया, किसी भी नफ्स के लिए कुछ भी, वल अम्रु यौम इज़िल लिल्लाह, और हुक्म उस दिन सिर्फ अल्लाह ही का होगा। यहाँ पर जो है ना कि हुक्म उस दिन सिर्फ अल्लाह ही का होगा, ये आप लोग लिखें सूरह मोमिन, ये बहुत स्कॉलर्स भी पढ़ते हैं, सूरह मोमिन आयत 16, सूरह मोमिन आयत 16 लिखें कि उस दिन पूरे महशर के मैदान में उस वक्त क्या होगा, अल्लाह ताला पुकारेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, के ए नस्ल इंसानी के लोगों, देखो आज किसकी हुकूमत है, आज इख्तियार इक़्तिदार किसके हाथ में है। तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला ही देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सूरह मोमिन आयत 16 है कि आज के दिन इख्तियार कुल का कुल अल्लाह ही के पास है, जो अकेला है और सब पर गालिब है। राइट, ये देखें, ये क्लियर हो जाती है। और एक आप लोग सूरह बकरा 48 अपने लिए लिख लें कि देखें सूरह बकरा 48, ये वो रिमाइंडर्स है कि देखें इसका तर्जमा, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आएगी कोई जान किसी दूसरे जान के कुछ भी, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना ही कोई मदद ही मिल सकेगी। ठीक है ना, ये दुनिया का मामला है, यहाँ कायदे कानून है कि हम एक दूसरे की जितनी मदद करें, औलाद की, रिश्तेदार, घर, हमसाए, इस वक्त देखें एक और है कि आप जितनी करेंगे, लेकिन उस दिन जो अमाल नामे इस तरह के हैं और इस तरह का दिन है कि कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा, अपनी अपनी मेहनत होगी, फर्दन फर्दन पढ़ा है हमने सूरह नाम में कि फर्दन फर्दन गए हो और फर्दन फर्दन तुमने वापस आना है, और वो सब कुछ छोड़ आना है जो तुम यहाँ जमा करके गए हो। ठीक है ना, चले यहाँ सूरत कंप्लीट होती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।